ऑडियो ऑडिबल सभी को आवाज जा रही है क्या? जा रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के मैसेज करेंगे। If you are audible, then tell it in chat box. Okay. Good afternoon, all of you. Respected principal sir, Arthur sir, sorry sir here. Internet connections. Okay, are you audible? Okay. Good afternoon, all of you. Respected principal sir, Arthur sir, and all my colleagues. As you all know, this is Suman Misra from St. Paul Secondary School, Samastipur, and I am going to take in-house training meeting. And the topic that we have today is very interesting topic, and I think all you will love to go with this topic. So this one is effective communication skills. Effective communication skills. I think you all know about effective communication. That means you all will know about communication and why you need effective communication. If anyone share your opinion, anyone share your sense, then tell you in the chat box. जो लोग भी जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े उनको जुड़ने तक में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग भी अपना जो लोग भी अपना कम्युनिकेशन से रिलेटेड अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं, अपना सेंस बताना चाहते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। Your question is, what do you know about communication and why you need effective communication? Okay, now I will start the topic. Effective. Okay, let us first know about objective of this session, objective of this effective communication skills topics. So first of all, now define and understand communication and the communication process. So first of all, now define and understand communication and the communication process. Next one, list and overcome the filters, barriers in a communication process. Next, practice active listening. And last one, tips to improve verbal and non-verbal communication. First, define and understand communication and the communication process. So, first of all, now, definition of communication. What is actual communication? The communication, हम लोग जानेंगे सबसे पहले communication होता क्या है. The process of communication is what allow us to interact with other people. Without it, we should be unable to share knowledge or experiences with anything outside of ourselves. So, common forms of communication include speaking, writing, gestures, touch, and broadcasting. The process of communication is what allows us to interact. That means communication की meaning ही होता है हम एक दूसरे से interact कैसे हैं. अगर कम्युनिकेशन अच्छे से होता है तो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट अच्छे से होते हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हैं. अगर कम्युनिकेशन अच्छा से नहीं हो पा रहा आपसे तो आप किसी एक दूसरे से कांटेक्ट होने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं. सो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो हम एक दूसरे के लिए कनेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू. विदाउट कम्युनिकेशन we would be unable to share knowledge. कोई भी अगर knowledge कोई शेयर करना है किसी के साथ तो उसके लिए हम लोग को अच्छी communication skills का होना जरूरी है. Without we would unable to share knowledge or experience with anything outside of ourselves.
So common forms of communication include speaking, writing, gestures, touch and broadcasting. That means communication का जो basic methods है वो 3 basic methods है. First method आपका जो communication का 3 basic method है उसमें first method ही आपका verbal communication. Verbal communication and non-verbal communication and visual communication. Verbal communication that means हम लोग जब word का use करके कोई भी communication करेंगे, जब हम लोग word का use करके कोई communication interact होने का कोशिश करेंगे, वो सभी communication हमारे verbal communication कहलाएगी. जैसे कि हम word का use करके हम लोग orally जो communicate करते हैं, oral communication is a verbal communication. तो हम लोग वर्ड का 2 तरीके से यूज करते हैं. एक बोलचाल की भाषा में कम्युनिकेशन का यूज करते हैं एंड दूसरा रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में भी हम लोग वर्ड का ही यूज करते हैं. दैट मींस जब हम लोग ऑफिशियली कम्युनिकेशन करने चलते हैं, जब हम लोग ऑफिशियली कम्युनिकेट होते हैं, उसके लिए हम लोग को रिटन कम्युनिकेशन करना होता है. और रिटन कम्युनिकेशन में भी हम लोग वर्ड का यूज करते हैं एंड ओरल कम्युनिकेशन में भी हम लोग वर्ड का यूज करते हैं. तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन को हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं. दैट मींस वो फॉर्मल और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन ही होते हैं. और वैलिड फॉर्म जो होता है कम्युनिकेशन का, कभी भी हम ओरल कम्युनिकेशन इंटरेक्ट करने के लिए होते हैं, बट जो वैलिड फॉर्म है कम्युनिकेशन का वो वैलिड फॉर्म रिटन कम्युनिकेशन का है. ओके, टेक्निकल एरर. ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस बॉडी लैंग्वेज. जब हम लोग विदाउट वर्ड कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब हम लोग कम्युनिकेशन करने में कोई वर्ड का यूज नहीं करेंगे और ओनली ऑन बॉडी का एक्सप्रेशन से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. जैसे बॉडी गेस्चर होता है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, एंग्री का एक्सप्रेशन देते हैं. जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं फिर स्माइल का देते हैं. ये सब जो कम्युनिकेशन है, जब हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे तो यस सर, जब हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे, यस सर, ओके, सॉरी फॉर सम टेक्निकल एरर. कि हम लोग कम्युनिकेशन के मेथड्स पे, जो कम्युनिकेशन का सेकेंड मेथड है वो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट मींस विदाउट वर्ड. जब हम लोग विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन करते हैं बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू, जब हम लोग बॉडी का यूज करेंगे कम्युनिकेशन में तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा. जैसे कि बॉडी गेस्चर्स, सम एक्सप्रेशन जैसे स्माइल, एंग्री, ये सब का जो हम, या किसी को हमको इंस्ट्रक्ट करना हो तो ये जो इंस्ट्रक्शन ये सब देते हैं और उसमें बॉडी का यूज करते हैं. दैट मींस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड लास्ट वन मेथड जो है आपका विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन मींस, विजुअल कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन भी होते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी, बट इसमें हम ना वर्ड का यूज करते हैं ना ही बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं.
बट दोनों का यूटिलाइज करने के लिए हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, जैसे कि सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, हम लोग सिंबल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि नो पर स्टॉप, नो पार्किंग या फिर ट्रैफिक सिग्नल, ये सब जो सिग्नल यूज करते हैं इसमें कोई वर्ड का यूज नहीं करते हैं और ना ही बॉडी लैंग्वेज होता है, वहां पे बस एक सिंबल रहता है, उस सिंबल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। उस सिंबल के थ्रू हम लोग जो कम्युनिकेट करेंगे, जब सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होगा उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में जैसे स्टॉप लिखा हुआ देखते हैं, समझ जाते, लिखा हुआ नहीं, स्टॉप का क्रॉस साइन होता है, या फिर रेड सिग्नल देखते हैं तो समझ जाते हैं आपको क्या करना है, क्रॉस नहीं करना है, स्टॉप होना है, या फिर नो पार्किंग, कभी सिंबल से हम समझ जाते हैं यहाँ पे पार्किंग नहीं करना, तो वहाँ पे ना ही बॉडी लैंग्वेज होता है ना ही कोई वर्ड का यूज होता है, ओनली वन सिंबल रहता है। तो जब हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करेंगे किसी सिंबल के थ्रू, दैट मींस विजुअल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मुझे लगता है तीनों मेथड आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट मेथड है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड थर्ड विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड का यूज करेंगे, ये दो टाइप से वर्ड यूज होता है, एक ओरली एंड दूसरा आपका नॉन वर्बल, सॉरी ओरली एंड रिटेन। जब हम लोग जब हम लोग ये वर्ड का यूज करेंगे, वर्बल वर्बल दो टाइप से होते हैं आपका, रिटेन और ओरल। देन सेकेंड वन नॉन वर्बल, इसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे, एंड थर्ड विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम लोग वर्ड ना वर्ड का यूज करेंगे ना ही आपका बॉडी यूज होगा, उसमें ओनली वन सिंबल यूज करेंगे, और वो दोनों कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करने का काम होगा, वर्बल और नॉन वर्बल का। ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन के साइकिल्स को जानेंगे। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हमने यहाँ पे स्लाइड में कम्युनिकेशन साइकिल में दो पार्ट्स बनाए हैं, एक येलो एंड एक ऑरेंज कलर। ऑरेंज में आपका सेंडर, एक में आपका रिसीवर। ये कम्युनिकेशन साइकिल के लिए जो मेथड चाहिए वो सॉरी, कम्युनिकेशन साइकिल में जो दो पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट है आपका सेंडर एंड सेकेंड है रिसीवर। सेंडर में आपका क्या है, जो हम लोग सेंड करते हैं मैसेज को, सेंड कभी कोई कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले मैसेज का फॉर्मेशन क्रिएट करना होता है। जब हम लोग मैसेज को फॉर्मेट करेंगे उसको हम लोग इनकोडिंग बोलेंगे। हम यहाँ पे डिनोट कर रखे हैं सेंडर में इनकोड। इनकोड मींस होता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। जब हम लोग कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन का मेथड ही है, आप अगर कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये रूल है, आपको अगर किसी से कम्युनिकेशन करना है तो उसको पहले क्या करना है, फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेट बनाने को अरेंज कर लेना है। जो आप अगर किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो उस मैसेज भेजने से पहले आपको उसका क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना। उस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग मींस फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, और वो सेंडर करते हैं। सेंडर मैसेज भेजने से पहले मैसेज को अरेंज करते हैं, देन उसको किसी न किसी मीडियम के थ्रू फिर भेजते हैं। वो मीडियम जो होता है, वो मीडियम मेरा कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन चैनल, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, या फिर हम लोग वीडियो कॉलिंग, ये सब के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन इसको हम लोग मीडियम बोलेंगे। और जब सेंडर मैसेज को किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू मैसेज को सेंड करता है तो वो रिसीवर के पास जाते हैं, और रिसीवर जो होते हैं वो मैसेज को डिकोड करते हैं। यहाँ पे डिकोड करने का मीनिंग हुआ, डिकोड का मतलब हुआ यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। इंटरप्रिटेशन दैट मींस एक्सप्लेनेशन। जब हम लोग मैसेज को रिसीव करते हैं तो किसी के मैसेज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद उसको पूरा रीड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको समझते हैं। तो कम्युनिकेशन साइकिल में दो जो पार्ट्स हैं, सेंडर और रिसीवर, इस दोनों के बीच इनकोडिंग और डिकोडिंग होता है, और इस दोनों को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम मेरा कम्युनिकेशन चैनल होता है। जैसे कि अभी हम वेब मीटिंग में
जूम चैनल मेरा कम्युनिकेशन चैनल हुआ, इसके थ्रू हम आप लोग से क्या करें, कम्युनिकेट करें। और ये जो स्लाइड बना है, ये स्लाइड हमारा इनकोडिंग फॉर्मूला, दैट मींस हम फॉर्मेट बनाए हुए हैं, इस स्लाइड के थ्रू हम आप लोग से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और फिर रिसीवर क्या कर रहे हैं, मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो कम्युनिकेशन साइकिल में क्या है, सबसे पहले सेंडर, फिर कोई मीडियम होगा जिसके थ्रू हम मैसेज को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। देन सेकेंड पार्ट रिसीवर होते हैं जो मैसेज को रिसीव करके मैसेज को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। और ये सेंडर मैसेज को सेंडर मैसेज को भेजने का काम, रिसीवर मैसेज को रिसीव करने का। और रिसीव करने के बाद जो मीटिंग जो मैसेज रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद मैसेज का फीडबैक भी देना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रूल्स ही है, जो मैसेज आप किसी को भेज रहे हैं, अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है, फीडबैक मींस रिस्पांस, दैट मींस अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है, फिर आप रिस्पांस मिलने के बाद आप समझ सकते हैं जब मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। विदाउट रिस्पांस आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फर्स्ट रूल जानेंगे तो फर्स्ट रूल यही है, आप अगर मैसेज को किसी को भेजते हैं, अगर उसका आपको रिस्पांस मिल रहा है या आप कोई लेक्चर ही दे रहे हैं, उस लेक्चर का फीडबैक मिल रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होगा। अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। यस सर, हेलो सर, यस सर, यस सर। हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल को अभी समझे। सबसे पहले एक सेंडर, फिर रिसीवर, और सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्ट करने का काम जो करते हैं वो मीडियम होता है, और वो मीडियम कोई कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अमॉन्ग पीपल। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन साइकिल में हम लोग इनकोडिंग को भी जाने, इनकोडिंग का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ओर जाना है, अगर आपको कम्युनिकेशन को 100% कंप्लीट करना है, तो ये आपको इनकोड करना होगा, यानी फॉर्मेशन आपको क्रिएट करना होगा। फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका फीडबैक आ रहा है या नहीं आ रहा, दैट मींस रिस्पांस आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है तो फिर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है, रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो फिर आपका कम्युनिकेशन 100% कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन वन वे भी होता है, बट उसमें भी फीडबैक आपको मिलता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको फीडबैक का वेट करना होता है। फीडबैक अगर अच्छा से आपका मिल रहा है तो फिर हम समझेंगे कि मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हम एक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट वन देखेंगे यूजेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज कहाँ पे है। एंड नेक्स्ट द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड फिर लास्ट वन, फैक्ट अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेक्स्ट वन इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज, और 7 C's, दैट मींस 7 कम्युनिकेशन स्किल। 7 C's का मीनिंग होता है 7 कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने 7 C's दिए हैं, जिसके जानने के बाद आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो 100% इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। यानी 7 कुछ पॉइंट है, 7 की पॉइंट है, जिसको जानने के बाद आप कोई भी कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेट आप बेटर तरीके से कर सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट अब जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। Effective communication is a two-way process, sending the right message and to the right person. That means effective communication जो है ये two-way process है,
और ये सेंडिंग मैसेज सेंड करने के लिए और किसको हम भेज रहे हैं, इस दोनों पे डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है जो आपको किसी को मैसेज आप किसी कोई मैसेज किसी को भी भेज सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको मैसेज जो भेजना है वो किसे भेजना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी आप अगर लेक्चर ही दे रहे हैं तो लेक्चर आप कहाँ पर दे रहे हैं। अब ये नहीं जो 5-6 में जाके क्लास में लेक्चर आप 11-12 बेस का दे रहे हैं, 11-12 सिलेबस को आप 5-6 क्लास में जाके लेक्चर दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाए, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, आपके बच्चे वहाँ पे आपका लैंग्वेज समझ ही नहीं पाएंगे। तो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, और इसमें देखना होता है जो मैसेज किसको भेज रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट टू know the psychology of the people you are interested with for communication to be effective। इसमें हम लोग को ध्यान रखना होता है, दूसरे को हमको पढ़ना पड़ता है, दूसरे का साइकोलॉजी को जानना पड़ता है। आप जहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं उसमें आपको रिसीवर के माइंडसेट को देखना होगा, उसके बैकग्राउंड को जानना होगा, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो मेरे कम्युनिकेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन सही नहीं है वहां पे हम लोग जाकर के पूरा इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, तो फिर वहां पे वो समझ नहीं पाएंगे। तो कम्युनिकेशन का जो रूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, इसमें हमेशा हमको व्यूअर को देखना पड़ता है, रिसीवर को देखना पड़ता है। रिसीवर के अकॉर्डिंग हम अपने कम्युनिकेशन को सही ढंग से रखेंगे जो रिसीवर समझ पाए। Next one point, for communication to be effective, it is necessary to know the circumstances of the counter entity. So, 10 out of 10. Next one, effective communication includes all the aspects of visual, auditory, and kinesthetic language to appeal the listener. लोग effective communication करने के लिए अपना visual, auditory, and लिसनर को अच्छी तरह से सुनेंगे, जो वहां से हमको क्या रिस्पांस मिला है उसके अकॉर्डिंग हमको आगे का लेक्चर स्टार्ट करना होगा या लेक्चर से कंटिन्यू रखना होगा। विदाउट रिसीवर का सुने हुए हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं, उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका नहीं होता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का डेफिनेशन को जानेंगे। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन व्हिच प्रोड्यूसेस इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम अपने अकॉर्डिंग जो हम समझा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट को भी देख सकते हैं, हम अपना रिस्पांस को भी देख सकते हैं। So next one, next slide is uses of effective communication. Effective communication help to understand the person or situation in a better way. It enables us to solve the differences, build trust and respect in the organization. Effective communication एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हम किसी के कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमको दूसरे का भी सिचुएशन जानना होगा, वो किस सिचुएशन से बिलोंग कर रहा है। उस सिचुएशन के बगैर जाने हुए हम अगर कुछ से कुछ बोलते जा रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमको दूसरे के माइंड मैप को देखना पड़ेगा, वो किस सिचुएशन से बिलोंग कर रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग हम अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। It enables us to solve the differences, build trust and respect in the organization. आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं फिर आपको वहां से रिस्पेक्ट मिलता है, ये या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर वहां से आपको रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सब आपको मिल जाएगा। Next one, sometimes our message is misunderstood or we misunderstand
the received message. So effective communication help us to resolve problem with both point of view. आप कभी अगर कोई कम्युनिकेशन आपसे कर रहा है, आप अगर उसके मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कोई मैसेज आप सेंड किए उसमें आपके मैसेज को कोई नहीं समझ पा रहा है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल्स है जिसके थ्रू हम कोई भी मैसेज भेजने का भी तरीका जान सकते हैं, उस मैसेज को हम कैसे दूसरे को समझाएं और दूसरे के मैसेज को कैसे समझें, ये सब हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन में करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को दोनों को ये हम अपना भी और सामने वाला का भी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, effective communication help us to connect with kids, boss, colleagues, etc. यानी effective communication हमें help करती है अपने बॉस से, कलीग से, ये सबसे अपना एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, एक अच्छे कनेक्टिविटी रखने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। आपके पास अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आप क्या अगर स्किल इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है, फिर आप एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट रहेगा, इंटरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग। हम लोग डिसीजन मेकिंग में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। यानी आप एक कम्युनिकेशन एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फिर आप जो डिसीजन होगा, डिसीजन लेंगे, उसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's में हम बताएं कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कम्युनिकेशन के 7 ऐसे स्किल पॉइंट दे रखे हैं जिसको जानने के बाद आप अपने कम्युनिकेशन को 100% कंप्लीट रखेंगे। उस कम्युनिकेशन को जानने के बाद 7 C's पॉइंट को जानने के बाद आपका कम्युनिकेशन लेवल जो होगा वेरी हाई हो जाएगा। यानी कुछ पॉइंट है 7 C में जिसको हम एक एक करके जानेंगे। जो कम्युनिकेशन के 7 C's पॉइंट क्या है, इस कम्युनिकेशन पॉइंट को जानने के बाद आज के बाद हम लोग का जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही हाई रहेगा, क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अभी जो 7 पॉइंट क्या है, इस 7 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है आपका कंप्लीटनेस, सेकंड है कंसाइजनेस, एंड थर्ड कंसिडरेशन, एंड फोर्थ क्लैरिटी, एंड फिफ्थ कंक्रीटनेस, एंड सिक्स कर्टसी, एंड 7 करेक्टनेस। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे completeness. Completeness, the information conveyed in the message should be complete for the communication to be effective. कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है, उस कम्युनिकेशन में हम लोग कोई भी कंटेंट अगर रखते हैं या कोई मैसेज ही रखते हैं, तो उस मैसेज को चाहेंगे क्या पूरा कंप्लीट रखें। यानी जो हमारा मैसेज होगा वो 100% कंप्लीट सेंस देगा। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीटनेस, दैट मींस आप कोई भी कम्युनिकेशन का पॉइंट रखते हैं, उस कम्युनिकेशन के पॉइंट को 100% कंप्लीट सेंस देने लायक ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी पॉइंट ले ले उस पर कुछ से कुछ बोल देना है, ऐसा नहीं करना है। जो भी लाइन बोलना है, जो भी लाइन कम्युनिकेशन में यूज करना है, इंटरेक्ट होने के लिए यूज करना, उसका मीनिंग होना चाहिए। मीनिंगलेस वर्ड का यूज नहीं करना है और 100% कंप्लीट मीनिंग दे ऐसा वर्ड ही आपको यूज करना है। द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। कंप्लीटनेस एंड कंप्लीटनेस में भी ये देखेंगे हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने पिछले भी डिस्कस करे, आगे भी डिस्कस करेंगे। जो हमेशा हमको मैसेज जो बनाना है, मैसेज जो क्रिएट करना है, मैसेज का जो फॉर्मेशन करना है, वो हमेशा रिसीवर के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो मैसेज हमारा समझ जाए। आप कभी भी मैसेज भेजने से पहले ये जरूर देख लीजिए जो हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सामने वाले को देख करके उसके बाद हम उसका कम्युनिकेशन करेंगे। और जो कंप्लीटनेस है वो अपना रिजल्ट जो भी रखेंगे या अपना जो भी कम्युनिकेशन का पॉइंट रखेंगे उसको 100% कंप्लीट देंगे व्यूअर के अकॉर्डिंग, रिसीवर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट कम्युनिकेशन enhances the reputation of the organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर 100% कंप्लीट कम्युनिकेट करती है तो फिर उसका रेपुटेशन बहुत ही हाई हो जाता है, इनहेंस करता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको कम्युनिकेशन लेवल को क्या करना है, हमेशा
कंप्लीट रखना है, यानी कभी कंप्लीट कम्युनिकेशन, अगर कोई लाइन है, कोई एडवर्टाइजिंग या फिर आप कोई भी रूल रेगुलेशन ही लगाते हैं तो उस रूल रेगुलेशन का 100% मीनिंग होना चाहिए, जिससे कि आपका रेपुटेशन बहुत ही हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज complete information, always give us additional information wherever required, it leaves no question in the minds of the receiver। अगर आप कंप्लीट सेंस देते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, अगर कहीं आप लेक्चरशिप दे रहे हैं, कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं जो हम लोग बातचीत जो करते हैं, ये कोई भी टीचिंग फील्ड में ही अगर आप पढ़ा भी रहे हैं तो वहाँ पर में भी आपका कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ हमेशा ऐसा लाइन का यूज करना है, हमेशा ऐसा लेक्चर से देना है जो रिसीवर के माइंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं बचे। रिसीवर का जो भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन हम लोग को पता चल जाए, वो क्वेश्चन हम लोग को पहले ही डिस्कस कर लेना है, यानी हम क्वेश्चन उससे उनसे पूछने से पहले ही जो टॉपिक दे रहे हैं उस टॉपिक का पूरा 100% रिजल्ट बता देंगे, जिससे कि उसके पास में कोई भी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। Complete information helps in better decision making as it serves all the desired and crucial information. Complete information helps in better decision making as it serves all the desired and crucial information. Complete communication जो है आपका हर कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन को 100% कंप्लीट देती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। Next one slide. Conciseness. That means conciseness means communicating